গুড মর্নিং বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব 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 ভালো আছো। সকালটা আজকে এই শুরু করলাম, মানে এই বলতে না, ঘন্টাখানেক কি 2 ঘন্টা মতন হয়ে গেল শুরু হয়েছে সকাল আমার। সকালবেলা বাসি কাজ সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। বাসি কাজ করে পুজো টুজো দেওয়া কমপ্লিট, স্নান টান করাও কমপ্লিট। আজকে জানুয়ারির 12 তারিখ, অনেক দিন পরে আবার ভিডিও দিচ্ছি, কারণ আমার শরীরটা ভালো ছিল না, তার জন্য। এই যে আজকে সকালের ওই মা থেকে দাঁড়াই থাকে কড়াইশুটি কচুরি হবে, তাই এই যে সকালবেলায় ময়দা ব্যথা সব মেখে রেডি করে রেখেছিলাম। আর হচ্ছে আলু কষা কষা এখন পাশে মেয়ের দুধ বসানো রয়েছে গ্যাসে। পাঁচ পাঁচ খাচ্ছে। পড়ে যাচ্ছে পড়ে যাচ্ছে। এবার শীতে এখনো কড়াইশুটি কচুরি করা হয়েছিল না, আজকে করছি। শীত তো আস্তে আস্তে চলেই যাবে, তারপরে আর করাই হবে না। শীতকালে এটা খেতে খুবই ভালো লাগে। এটা এখানে খারাপ ভাবে রেখেছি, এটা পুরো দেখা যাচ্ছে। তো অত উঁচুতে তুলতে কে বলে তোমারে? আমি তো অত উঁচুতে তুলি না। আমার দেখাতে হবে না, আমার কড়াই আর ইয়ে দেখালেই হবে। আমি বলি না আমারে দেখাও। চলো ইয়ে করে দিয়েছো তো? এই যে দুধটা প্রায় ভরা হয়ে গেছে, আর একটা আছে, অল্প করেই করবো, সকালবেলায় খাওয়া তো। সকালবেলায় বেশি তেলে ভাজাটা ভালো লাগে না, আমার বরের জন্যই করতে হচ্ছে। কারণ কালকে একবার বলেছিলাম আমি করিনি। কালকে যেহেতু আমার বাবার বাড়ির থেকে খাবার পাঠিয়েছিল, রাইস আর মাংস পাঠিয়েছিল, রাত্রেই করবো ভেবেছিলাম। তাহলে মা ফোন করে আমাকে বললো যে হচ্ছে এরকম খাবার করেছে, নিয়ে আসতে। তো সমীর মানে আমার বর আর কি, দোকান থেকে বাড়ি আসার সময় তখন নিয়ে আসলো রাইস আর মাংস। ওই জন্য রাতে আর করা হয়নি। সকালবেলায় সব আটা ঠাটা মেখে রাখলাম, রেখে আমি পুজোটা দিয়ে নিলাম, যে আগে পুজোটা দিই। কারণ তোমরা তো ভালো করে জানো আমি পুজো যতক্ষণ না দিই ততক্ষণ আমি গ্যাসের কাছে আসি না। তো পুজো দিয়ে একদিকে হচ্ছে মেয়ের দুধ বসা দিয়েছি। আলুদমটা হচ্ছে সকালেই আগে করে নিয়েছিলাম। সকালবেলায় করা বলতে আমি সব রেডি করে দিয়েছিলাম, বর হচ্ছে গুছিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলাম। আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম এভাবে করতে, কারণ আমি বাসি কাপড়ে গ্যাসের উনুন ধরি না কোনোদিন। বাসি কাপড়ে গ্যাস ট্যাস মুছি ঠিকই, কিন্তু গ্যাসের উনুন জ্বালায় না, ওই জন্য বরই বসিয়ে দিয়েছিল। এবার ও দেখি ঝোলটা অনেক বেশি রেখে দিয়েছে, মানে এতটা বেশি ভালো লাগে না ঝোল, ওই জন্য আমি আবার ঝোলটা একটু শুকাতে দিয়েছি, যে পুরটা ভরতে ভরতে অন্তত ঝোলটা শুকিয়ে যাক একটু। প্রায় হয়ে গেছে ঝোলটাও। তো হচ্ছে এই পুরটা কীভাবে করতে হয় সেটা একদিন তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। আজকে আর করা হয়নি, মানে যেহেতু বরমশাই তাড়াতাড়ি দোকানে যাবে, নতুন দোকান বুঝতেই তো পারছো, একটু তাড়াতাড়ি খুলতে হবে, ওই জন্য চাকরি বাকরি করে আমার করতে হচ্ছে। পুরো একদম এটা পারফেক্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটা কমপ্লিটে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও আমি কড়াটা একটু বসিয়ে।
এই দেখো, এই যে এগুলো খেতে এই শীতকালে খুবই ভালো লাগে। পুরা খানিকটা আর একটু রেখে দিলাম, দেখি যদি রাতে করতে পারি, রাতে করবো। তো প্লিজ 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 তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর ফেসবুক চ্যানেলটাকে ফলো করো। প্লিজ 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 তোমাদের কাছে এটাই রিকোয়েস্ট করবো, ফেসবুক পেজটাকে ফলো করো আর ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। লাইক শেয়ার কমেন্ট প্লিজ তোমরা একটু করো, আমাকে একটু হেল্প করো। তোমরা ছাড়া আমাকে হেল্পটা কে করবে? সবাই তোমাদের তো বলেছো, সবাই আমার এই ভিডিও করা নিয়ে অনেক রকম অনেক মন্তব্য, অনেক ছোট বড় কথা, অনেক হাসি খুশিটা ঠাট্টা অনেক কিছু করেছে। প্লিজ তোমরা আমার পাশে থেকে আমাকে আমার উদ্দেশ্যে পৌঁছে দাও, যাতে আমি তাদেরকে যোগ্য জবাব দিতে পারি। অনেক কিছু মানে লাইফে আমার এই করার জন্য অনেক কিছু লাইফে সাফার করতে হচ্ছে বা হয়, তবু আমি আমার জায়গাতে সরিনি। আর আমি ভেবেই নিয়েছি আমার জায়গাতে আমি কোনো রকমের সরবো না। আমি আমার কাজ আমি করবো, কারণ আমি কোনো অসভ্যতামি বা কোনো নোংরামো কিছুই করছি না। তো ওই জন্য আমি আমার জায়গা থেকে কোনো রকম সরবো না, আমি ভেবেই নিয়েছি। তো এই দেখো, এই যে পুরটা এরকম মোটা মোটা হবে, এইরকম পুরো এরকম হবে, আর ভেতরে কিন্তু পুরো পুর ভর্তি। এটা সব থেকে বেশি ভালো লাগে আলুর দম। ছোটো ছোটো যে এখন নতুন আলু বুঝতে পারছো, বাজারে তো নতুন আলু ছোটো ছোটো পাওয়া যায়, সেগুলো করলে মানে মশলা দিয়ে একটু জিরে আদা শুকনো লঙ্কা সব রকম বা মশলা দিয়ে একটু ঝাল বেশি বেশি করে ঝাল ঝাল করে করলে খেতে খুবই সুন্দর লাগে। আর সাথে যদি একটু কড়াইশুঁটি মানে আলুর দমের মধ্যে দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। আমাকে অনেক সকালেই উঠতে হয়, প্রচণ্ড ঠান্ডা আমাদের এখানে, প্রচণ্ড। আমি তোমাকে দেখাচ্ছি কেমন কুয়াশা পড়েছে আমাদের এখানে, আর সেই রকম ঠান্ডা হাওয়া ছাড়ছে। তো কিছু করার নেই, আমার তো আমার ডিউটি আমার করতেই হবে, ডিউটিতে আর কোনো ছাড় নেই, ডিউটি আমার করতেই হবে। না না, সোমবারে ম্যাডাম নেই তো, সোমবারে হালদার তো। আচ্ছা, সোমবার আসবেন। হ্যাঁ, সোমবারে ডাইরেক্ট আপনি চলে যাবেন ওখানে, ডাইরেক্ট বলে চলে যাবেন। আপনি বলেন পড়াশোনা করতে হবে, সেই হিসেবে বলবেন।
আমার জানিয়ে দিন। आज आपके हर এখনো সকালে চা খাই হয়নি, চা করবো। আর তোমরা তো জানোই আমি সকালে চা না খাই, আমার এইসবের অত ইন্টারেস্ট নেই। মেনলি আমার চা এক কাপ করে লাগবেই সকালে। মানে যতক্ষণ আমি চা না খেতে পারি আমার মানে অস্বস্তি বোধ হয়। जिसका नाम सांख्य योग है তো उसके आरंभ চা में বসাবো, এটা अर्जुन করে ने নিই, श्री করে कृष्ण নিয়ে के বড়মশাইকে आगे খেতে দিয়ে নিই, अपना তারপরে दुख চা प्रकट किया বসাবো। है ও তো খেয়ে দিয়ে कि স্নান हे করে केशव, দোকানে বেরোবে। मैं এই জন্য औरों से আগে আমি कैसे এটাই युद्ध कर করতে सकता বসলাম हूँ। যে আগে এটা আমি ये করে सब নিই। तो मेरे দেখেছো কিরকম अपने তেল ही है। বেরোচ্ছে, খুব मैं তেল कैसे বেরোচ্ছে, विष्णु মানে पितामह খুব তেল और টানে। द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। এই যে जो এরকম अधर्म খুলবে, करता है उसके এরকম साथ খুলে युद्ध খুলে উঠবে। करना অ্যাকচুয়ালি ওই तुझे দুটো मोक्ष খুলিনি, और मुक्ति देगा। সাইডে ছিঁড়ে तू গিয়েছিল। अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है। बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसीलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं ये दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेके गए जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रिय चित्त व्यवहार किया इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ, उसे गले से लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, वो मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का न कोई माता होता है न कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराये है। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से মেয়ে कहा খাচ্ছে। कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोचा नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अंधतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है, वो जो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी ওই नहीं জন্যই है, তো কাজ করে तू রেখেছি, चाहकर তেল भी ওকে চা कुछ নেই। कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर भी रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं।
इसलिए जो ये होने देखो वाला কত है সুন্দর ফুল वो ফুটেছে। होकर ही रहता है এরকম और जो ফুলবে সব। नहीं होने वाला है वो कभी এতে नहीं होगा। প্রচন্ড তেলটা ऐसा निश्चय जिसको তেলটা समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, করতে হয়। उसे कभी कोई चिंता এই नहीं দেখো सताती, कोई दुख नहीं যে सताता। কত সুন্দর খেতে हमारे লাগে এই सारे दुखों ফুচকাটা, का कारण ही তোমাদের আমি यही है। বলে বোঝাতে পারবো না। या तो हम जो वक्त খেতে गुजर লাগে। चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर करके खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और न ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर समय को नष्ट नहीं करना খাবা না আর? चाहिए कि अभी मेरे আলুর দম पास দিয়ে খাবা? बहुत समय बचा है। एक गुरु जी ने চা দিয়ে খাবা? को पारस का চা দিয়ে এমনি খাবো, उनका আলুর দম দিয়ে তো আমি খাবো না। बहुत आलसी था, हर আমার काम को খুদাই ভালো লাগে, লুচি कल पे টুচি टाल লুচি देता টুচি था। ভালো লাগে। तो गुरु जी ने उसे कहा कि मैं तुझे ये पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और ये पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरु जी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वो लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का वो रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा थोड़े दिन रुक के ले लूंगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। और उसकी बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आया कि इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता हूँ। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन का आलस्य, उसकी वजह से उसने उस काम को कल पे डाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरु जी उस शिष्य के पास आ पहुंचे कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। तो गुरु जी ने कहा मुझे मेरा वो पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा ये पारस पत्थर मामा! पूरा 1 महीना तेरे पास था पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, और ये समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी को দাও जिएंगे, চাচা হাবি বিস্কুট एक দেখো दिन মিষ্টি जिंदगी সুন্দর खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। শোকেসের মধ্যে বললাম তো মাঝখানেরটাই, कि मौत से डरना এই মিট কেসের মধ্যে। बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ये संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका কাপড়ের তলা आरंभ দেখো हुआ 5 টাকা है রয়েছে। उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं আর है। একটা খাবো, হয়ে যাবে। आत्मा कभी नहीं मर सकती, তা কে খাবে ना এতগুলো? ही उसे একটা कोई খাবা? मार আবার চা দিয়ে सकता খাবে है। একটা, लेकिन मौत का তুমি डर খাবা मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। কতগুলো? मौत का दुख इंसान को सबसे ज्यादा होता है। তা আমি কার एक জন্য पेड़ বানাবো? में 2 पक्षियों का जोड़ा रहता था, उन दोनों को एक दूसरे से খেয়ে बहुत শক্তি করো, प्रेम গায়ে था। কাজে লেগে যাবে उन्होंने ভবিষ্যতে। হ্যাঁ, গায়ে শক্তি করো খেয়ে নিয়ে। তুমিও বুদ্ধি বানাও। দেখো তো আমি বুদ্ধি দেখছো না, আমার বুদ্ধি থাকলে তাহলে আর
এই লুচি ভাজলাম না, পুরি ভাজলাম না বসে বসে। एक पेड़ में दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहां एक शिकारी आया और उसने एक तीर चलाकर वहां पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो के बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते ফালতু हैं ফালতু जब कोई আলুর मरता দমটা है, ইয়ে করলাম, लेकिन हमें ये नहीं पता খেতে গেলেই কষ্ট कि হয়। एक न एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो আর जाएगा। যেদিন করবো না हम সেদিন भी বলবে उसी আলুর দম मृत्यु নেই। के पेड़ पे ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत হাত नहीं है। আবার হুশ হয়ে গেল। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि খাচ্ছ हे তুমি? अर्जुन, तेरे खाओ। और मेरे ভালো ভালো ভালো। कुछ भी याद যখন नहीं, খাবে তখন খাবে। लेकिन मुझे सब याद है। চলো जो প্যান্ট পাল্টে व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में খুঁজছি আমি कुछ খুঁজছি। समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वो एक नगर में पहुंचे। वो महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वो महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, ये तुम्हारा महल है? मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? নিয়ম আমি तो वो বুঝে পাই राजा না। बोला कि मुझसे ওগুলো पहले ভিজা। मेरे पिता यहाँ তারপর पर যেটা रहते বলবো थे। এটা এখন और আপনি उससे বলতে হবে। पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? तो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे জিনিস পাবে জুতা পাল্টাও। इस जगह पर সারাদিন ধরে জুতো পাল্টাই, যে খুব ভিজে যায় পরে না সেই জুতো। उसे घर कैसे कह सकते हो? ওই বলতে যেগুলো বলে না धर्मशाला नहीं है। ওটা তো ভিজা কুয়াশা কুয়াশা। धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है। वो किससे मत करो, सब स्वप्न का सामान है। यदि हम इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएं। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि ये मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाला ही नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरा विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ और जो नहीं करना चाहता हूँ वो मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे কিরে জুতো পর, विचारों से পিঠ পিঠ ঠান্ডা, জুতো পর। তোমার আমার বলে সকালবেলা বাবা 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 বলে ডাকলো উঠলাম। কামলো দিয়ে খুললাম। মাথাটা দিচ্ছে মুখাটা দিচ্ছে। जब तक वो अपने मन और दुई हाथे धरे चुम्मा दिलो। का त्याग नहीं माँ। करता, तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वो बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने चलो लगा हाथ जाओ पैन कि बोल दो। मेरा मन बहुत चलो बेचैन अपने। है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पूरे रोटा संसार खबर को जीत है। लिया है, তুই তো सब ফল कुछ খাওয়া। है मेरे पास, पर मैं এটা खुश তো नहीं প্রতিদিন हूँ। তোমার 3 বেলায় এটাই কথা, দুধ পরে খাওয়াবা, शांति नहीं है। দুধ পরে খাওয়াবা। गुरु जी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर আমি लिया হাফ কেজি है, চাল খাবো। तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो तो तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। আমি খাচ্ছি। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि ये तो बहुत आसान काम है। वो अपने राजमहल में आया और राजसभा में वो सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांत हो चुका हो, जिसे सुकून मिल गया हो, वो अपना कुर्ता मुझे दे दे। वो बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पर आ गई, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहां खड़े हो गए। फिर उस राजा ने চাটা করে पूरे দিই। नगर में ढिंढोरा पिटा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे और जितना कहेगा उससे उतना ही धन दिया जाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वो फला व्यक्ति आज शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया है। আমার নিজের খাওয়ার থেকে আমি মানুষকে খাওয়াতে বেশি ভালোবাসি। নিজের অতটা খাওয়া নিয়ে ইন্টারেস্ট নেই, বা হাউ হাউ করে খাবো, এই খাবো সেই খাবো এরকম চিন্তা ভাবনা নেই, বা খেতে আমার ইচ্ছা করে না। আমার বানাতে মানুষকে খাওয়াতেও ভালো লাগে আর বানাতেও ভালো লাগে। তো महात्मा ने कहा, मैं এই যে पूरी तरह সকালে से সব शांत हूँ। থেকে বড় কাজ उस ছিল सैनिक যেটা उसे আমি राजा के সকালে पास ले आया। কাজ করছি আর ভাবছি राजा ने কখন उस কখন महात्मा কখন से রেডি प्रश्न করে किया দেবো, ঠিক টাইমে कि রেডি क्या করে খাবার आपको দিতে পারবো शांति और কিনা। টাইম सुकून प्राप्त हो चुके ঘড়ি हैं? কাটা তো আর महात्मा कहने দাঁড়াচ্ছে না लगे, আমার জন্য, ঘড়ির কাটা তো महाराज চলেই যাচ্ছে। मैं पूरी तरह से शांत তো हूँ। ফাইনালি मुझे রেডি कोई করে चिंता ফেলেছি। नहीं, এই যে চা, मुझे किसी चीज की लालच नहीं। চাটাও হয়ে গেছে, এই দেখো চাও হয়ে গেছে। काम बन जाता है और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार का नियम ही है। जो বন্ধুরা দুপুরে আজকে কোনো রকম রান্না ডাল ভাত, ওই জন্য আর সেটা ব্লগটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম না। তাই এই যে বরের পছন্দের খাবার রেডি করতে বসে গেলাম। চিপে চিপে আলাদা করো। এই যে গামলায় ইয়েতে রাখা রয়েছে, দাঁড়াও। এই যে গরম রয়েছে এখন। চিপে রাখবো তা কোথায়? এই তো থালা। নুনটা দেখেছো? বললাম না নুনটা দেখো। আটু দেবো? দেখো কম লাগছিল। ময়দাতে অল্প দিয়ে আর একটু চটকায় নাও তাহলে। বড়টাই দেবো তো, ওটা তো আমি ইয়ে ছেঁকে নিয়ে আমি জল ঝরাতে দিয়েছিলাম। দেবো তো বড়টাই। আর একটু বললাম না ম্যাশ করো। আরে যখন চিপে বাই করবো না এমনি কুপে যাবো, জল টানবো না চিপে লাগবে, একটু লাগবে। ঝাল ঠিক আছে না? আমি একটু খাই বলে ঝাল বেশি দিয়ে নিবে। ওইটুকুতে যতটুকু হবে ততটুকু বলে। আমার বলে বেলতে এমনি কান্না পাচ্ছে, এখনই আমার কান্না পাচ্ছে বেলা কথা ভাঙনে পড়লি। হাতাটা ওই তোমার বালাটা গুটাতে পারো না, প্রতি সময় বলতে হয় বালাটা গুটানোর কথা।
করিয়ে দিই, নেটটা করিয়ে দিই, তারপরে আবার চালু করে দেবো। অন্যকে পুরো বানাইলে না, আমি এসে দেখতে বানা যাচ্ছে কি টেনশন, লাগটা আমার আরো বেশি সারপ্রাইজ দিতে পারো না। তুমি আমার অনেক সারপ্রাইজ দাও তো, তাই আমি তোমারে দিতে পারলাম না সারপ্রাইজ, সরি। আরে ঢেলে দাও, ওইটুকু থাকুক। আবার স্যুপও লাগবে তোমার, সবই লাগবে তোমার। হাতটা ভালো করে মুছো, আর চিপো না। হাতটা ধুয়ে ভালো করে মুছে আসো। আর গামলাটা ওই ঘরে কাঠের তলে গামলা রয়েছে, গামলাটা বার করে একবারে কলে নিয়ে গিয়ে হাত ধুতে যাবো, ধুয়ে নিয়ে আসো। কোন গামলা? যে গামলাটা স্টিম করবা। আমাদের সেদিন তখনও একবার বলেছিলাম যে মোমোর একটা ইয়ে কেনো না, না ওটাও ধুরবা। আর গামলা ওই ঘরে খাটের তলায় গামলা রয়েছে, একবারে নিয়ে যাও, আবার 14 বার নাই যেতে হবে। ওই কোনার দিকে, শোকেসের কোনার দিকে একটু ঘাটটা মাথাটা নিচু করো, দেখতে পাবা। চামচ লাগবে নাকি তোমার? তা চামচ দেখো, শোকেসে এই গ্যাসের সামনে রয়েছে। এবার একটুখানি তুলি। এমনি তোমার পুড়ে হবে না তো, ময়দা আমার বেশি মাখা হয়ে গেছে, পুড়ে হবে না। বাঁধাকপি আর নেই, তা কি করবো? একটাই মেখেছি, রান্না করেছিলাম, আমার সব হতে দেওয়া। বাঁধাকপি চটকালে কম হয়ে যায় না? অফিসি উঠাই দে উঁচু করে। ও খুব ভালো কথা। এই যে 1 প্লেট রেডি হলো, মানে একটা স্টিম দেবে এবার। ওই যে স্যুপ রেডি করছে, স্যুপ দিয়ে বসাবে সব। নুন দিয়েছো? ওই যে এবার আমার মেয়ে বেলতে শুরু করে দিয়েছে, মোমো বানাতে শুরু করে দিয়েছে। এই যে মোমো রেডি, খাও, নাচো নাচো নাচো। আর এই যে আমার মেয়ে। উলি বাবালি তুমি খাচ্ছ? ভালো ভালো মা, ভালো। এই যে আমার মেয়েও মোমো খেতে ব্যস্ত। এরকম ঘোলা ঘোলা হচ্ছে কেন গো? দেখো তো, ঘোলা ঘোলা আসছে কেন? এই যে প্যানটা সরাও। দেখো পাটগুলো এভাবে নাচছে, নাচো তো। ভালো হয়েছে খেতে? ভালো হচ্ছে, খুব ভালো হচ্ছে। খাও তুমি, নাচো। মা ভালো, ভালো না? খাও। এই ক্যামেরা পরিণত, ক্যামেরা মোটেই পছন্দ করে না, দেখেছো?